प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे, अपने मनों को खुदावन की ओर लगाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपके चरणों में आके बैठ सकें प्रभु, और आपका धन्यवाद करें क्योंकि आप ही सारे आदर, इज्जत और महिमा के योग्य हैं प्रभु। आप कृपा करके हमारे बीच में आए प्रभु यीशु मसीह, प्राथमिकता पाएं और हमारे होठों के फल आपको ग्रहण, आपके हुजूर में ग्रहण योग्य हों। प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने वचन को अधिकाई से हमारे अजीज पास्टर के मार्फत हमसे बातचीत करें प्रभु, और हमें खुदावन आज के वचन के लिए अवगत कराएं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूं सिस्टर ज्योति आपटे के लिए जिनको फीवर है, और उनकी मदर सिस्टर अरुणा आपटे के लिए जिनको हाई बीपी और हेडेक है, संपूर्ण चंगाई दें। भाई प्रकाश सेवक के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको फीवर, वीकनेस और सीवियर कोल्ड है, संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर रिशु के लिए प्रार्थना करता हूं जो भाई गौरव शर्मा की बहन है खुदावन, और उनको यूरिन पास नहीं हो रहा प्रभु, और कोल्ड कॉफ और स्टमक एक है, संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर सीमा मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं जो दिलशाद गार्डन से स्टमक एक और पेन इन लेग्स है प्रभु, आप संपूर्ण चंगाई दें। यदि और कोई खुदान भाई या बहन परेशान हाल या किसी बीमारी में मुब्तला है प्रभु, आप संपूर्ण चंगाई दें। खुदावन हमारा यहाँ इकट्ठा होना आपको कबूल हो प्रभु यीशु मसीह, और हर एक चीज में आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इबादत की शुरू में गाएंगे गीत का नंबर 83 इंग्लिश सेक्शन से, द लिली ऑफ द वैली। I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrows He's my comfort, in troubles He's my stay. He tells me every care on Him to roll. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptations He's my strong. Oh, hallelujah! I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith to do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, we'll see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Hallelujah. The bright and morning star. We worship Him. We give Him thanks. Amen. Hallelujah. Amen. प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए जबकि हम लोग खड़े हैं उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, only believe
things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. If you all believe, my Jesus is here. Aziz, pass bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, today evening once again हे अब्बा स्वर्गीय पिता, शाम को आपको फिर से धन्यवाद करते हैं for giving us another time and opportunity to come in your presence. आपने एक और समय और हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके हुजूरी में आ सकें. Under your shed blood we come, आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम आते हैं desiring another time of fellowship with you, और संगति का एक बार फिर से आपसे इच्छा करते हुए प्रभु giving us grace, Lord, हमें अनुग्रह प्रदान करें to understand thy word कि आपके वचन को हम समझ सकें in this hour इस घड़ी में which you have kept for us. जो कि आपने हमारे लिए रखा है. As we submit ourselves into hands of grace, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, under your supernatural hands, आपके अलौकिक हाथों के अंदर प्रभु, us, our families, our belongings, everything. हमें हमारे परिवारों को, हमारी जो चीजें हैं प्रभु, उन सब चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं. Now come, Lord, and bless us अब प्रभु यीशु मसीह आप आइए और हमें बरकत दें. as we approach you under your blood. जबकि आपके लहू के नीचे होते हुए हम आपके समीप आते हैं. In the name of Jesus Christ, the Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. Back to Ephesians 6, वापस निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय, and we are going to see, I believe, one of the last ones, but very strong one. और हथियारों में से शायद सबसे आखिरी है लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर है. And now we are reading verse 17. और हम पढ़ रहे हैं 17वीं आयत. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो खुदा का वचन है ले लो. Thank you, Father, for thy word. धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए. We are unworthy, हम अयोग्य हैं but under your blood we are worthy. लेकिन आपके लहू के नीचे हम योग्य हैं प्रभु. Lord, we come confessing our wrongs. हम आते हैं प्रभु अंगीकार करते हुए अपनी गलतियों का. Now, Lord, open thy word for us. अब आकर के प्रभु अपने वचन को हमारे लिए खोल दें. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं. So, blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए. Amen and amen. Now, for a little time, we are going to see this armor of God. अब थोड़े समय के लिए हम खुदावंद के शस्त्र को देखेंगे. And we find that it's in verse 17. और हम पाते हैं ये 17वीं आयत में है. After the helmet, the sword. और उस टोप के बाद आप पाएंगे तलवार है. Last time we saw the helmet, which पिछली बार- protects your head. पिछली बार हमने उस हेलमेट को देखा जो कि आपके सर को सुरक्षित करता है. All kinds of thoughts,
सब किस्म के विचार, and unbelief that strikes the mind, but helmet protects you. सब किस्म का विश्वास जो कि आके टक्कर मारता है सर पे, लेकिन जो हेलमेट है उससे सुरक्षा देता है। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम जलाल पाए। Helmets were made of brass, and here it's a helmet of salvation. You know, anything that strikes just falls down, it doesn't enter inside. आप पाएंगे कि जमाने में जो टोप होते थे और जो हेलमेट होते थे वो पीतल के बनते थे, लेकिन वास्तविकता में देखें तो यहां पे लिखा है उद्धार का टोप, और ये टोप इसलिए है ताकि कोई चीज आके अंदर ना जाए लेकिन उससे टकरा के नीचे गिर जाए। Surrounded by thoughts of redemption. और जो कि छुटकारे के विचारों से घिरा हुआ है। So anything that the devil tries to throw by unbelief, it just strikes, it comes, but strikes here and falls down. Doesn't enter inside. शैतान हर किस्म के अविश्वास को फेंकना चाहता है, लेकिन वो यहां टकराता है और नीचे गिर जाता है, अंदर घुस नहीं पाता। This is something which I'm also learning, and I would like my church to learn. Never accept any thought of the devil. और ये एक चीज है जो कि मैं सीख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया भी इस बात को सीखे, किसी भी शैतान के विचारों को ग्रहण ना करें। Oh, what a thought the prophet has brought. ओ क्या विचार है, खूब विचार जो कि नबी लेके आए। Today morning in my family altar, I placed it because I read it from Perfect Faith, and Brother Branham took an instance and wants to bring up thought to you and me. और आज सुबह मैंने फैमिली ऑल्टर में इस विचार को मैंने अपने परिवार में रखा, मैं उस संदेश को में से लिया जिसका कि शीर्षक है परफेक्ट फेथ, यानी कि सिद्ध विश्वास। Turn with me, yes, Brother Branham, turn with me in your Bibles. मेरे साथ अपनी बाइबलों में निकालें In the book of Matthew, मत्ती की इंजील chapter 14. और उसका 14वां अध्याय। This is an instance Brother Branham picked up. ये एक वृतांत है जिसको कि भाई ब्रैनम ने लिया, It's very good to explain this helmet of salvation. और इस उद्धार की टोप को समझाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। To cut short the time, I request my brother to read in Hindi from verse 22. समय बचाने के लिए मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं 22वीं आयत से। Yes. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। Now they understood this is Jesus, our Lord. अब वो समझ गए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। Next. अगली चीज, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Now see, अब देखिए, when they understood this is Jesus, जब वो इस बात को समझ गए कि ये यीशु मसीह हैं, oh fine, this is the Lord Jesus. ओ अब ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो प्रभु यीशु मसीह है। Suddenly faith arose in Peter. अचानक से विश्वास जग गया पतरस में। After all, it's not a spirit, it's our Lord Jesus walking on water. ये कोई रूह नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। Lord, can I come? प्रभु क्या मैं भी आ सकता हूं? He said, fine, you come. उन्होंने कहा, बेशक तुम भी आ सकते हो। What does this mean? इसका अर्थ क्या है? The works that I do, ओ माय, you can do also. इसका अर्थ यह है, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी कर सकते हो। Come on, Peter. ठीक है पतरस, Your father Adam used to do it, but sin somehow separated him and he stopped doing it. But now I'm doing it, the second Adam, and now you are under redemption. Mind you, the blood had not been shed. You can come. मानो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पतरस, तेरा बाप जो कि आदम है, पहला आदम, वो ऐसा किया करता था, वो पानी पे चला करता था, लेकिन गुनाह की वजह से ये काम हट गया। लेकिन आज छुटकारे के नीचे तेरे सामने दूसरा आदम पानी पे चलता हुआ आ रहा है, और छुटकारे के नीचे तू भी पानी पे चल सकता है। Come. आजा। And according to the scripture, और वचन की आयतों के अनुसार he started walking on water. वो पानी पे चलने लगा।
Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा at that time, उस समय there were large waves and white caps coming up. नबी ने बताया कि बड़ी बड़ी बहुत तेज लहरें आ रही थी और उन पे सफेद रंग का झाग था बहुत तेज. If you have been beside the seaside, you must have seen that. अगर आप समुद्र किनारे रहे हो और कभी गए हो देखा हो आपने तो आप इस बात को समझेंगे. Big waves and what you call white caps, foam. आप पाएंगे कि बड़ी ऊंची ऊंची लहरें और उसके ऊपर झाग बना हुआ सफेद. But Lord Jesus is walking on it. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन पे चलते हुए आ रहे हैं. And Peter said, yes, Lord. और पतरस ने कहा हाँ प्रभु. And he started walking on अब वो water. पानी पे चलने लगा. The wave is putting him up. He's going down, but he's walking. लहरें उसको कभी ऊपर उठाती कभी नीचे लाती है लेकिन वो चल रहा है तब भी. Now listen to the scripture. अब वचन को ध्यान से सुनिए. Brother Branham, because made a point from here. क्योंकि भाई ब्रैनम ने यहां से एक पॉइंट को रखा. Verse 30. 30वीं आयत. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. पर हवा की तीव्रता को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा ले. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया. Taking this, Brother Branham said, इसको लेकर के भाई ब्रैनम ने कहा when he was looking at the Lord Jesus, जब वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था and that faith rose in him, और वो विश्वास उसके अंदर जग गया he was just walking on water. तो वो बिल्कुल पानी में चल रहा था. Very simple. बहुत ही साधारण बात. Take him at his word and go. उसके वचन के अनुसार ले बात को और पानी पे चलें. He said, but when he started seeing the circumstances, लेकिन अभी ने बताया जब उसने हालतों को परिस्थितियों को देखना शुरू किया. he said, today those waves can be cancer or some symptoms or something. नबी ने बताया आज वो लहरें कैंसर हो सकता है कुछ लक्षण हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज हो सकती है. Some situation you are facing. कुछ ऐसी परिस्थिति जिसका शायद आप सामना कर रहे हैं. Though you were walking, यद्यपि आप पानी पे यद्यपि आप चल रहे थे but now you see all this nonsense. लेकिन आप इन तमाम बकवास को जब आपने देखा Like waves coming up. इन लहरों के मानंद आते हुए The minute his eyes went to the waves, जिस मिनट उसकी आंखें यीशु से हट करके लहरों पे लग गईं, his faith dropped like this. उसका विश्वास मानो यूं गिरा नीचे. And the minute it dropped, और जिस मिनट वो गिरा he started sinking. वो डूबने लगा. What he should have done, जो उसको करना चाहिए था he should have been a little head heavy. उसको उसका सर जो था उसको अपने सर को भारी रखना था. नहीं तो हिंदी करो उसकी सही. उसको अपना सिर चकमक की तरह तगड़ा करना था. उसको अपना सर चकमक की तरह तगड़ा करना था. ये सही हिंदी होगी. He should not have considered the waves and the wind. उसको ध्यान भी नहीं देना चाहिए था इन लहरों की ओर और इन लहरों की ओर हवा की ओर. My brother, if the word of God has said something, it is final. अगर खुदा के कलाम ने कुछ कहा है तो वह निर्णायक है. बाइबल तो यहां तक कह चुकी है, heavens and earth can pass away, but आकाश my और words पृथ्वी will टल not सकते fail. लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. मैं इसको फोन कर दूंगा, ये मेरा काम कर देगा, मेरा काम वहां से हो जाएगा, वहां से तो मेरा काम बन ही जाएगा. एवरीथिंग इज प्लस माइनस. हर एक चीज प्लस माइनस है. There's only one thing certain, केवल एक चीज निश्चित है पक्की है which is the word of God. जो कि खुदा का कलाम है. And if God has given you a word for your situation, और अगर खुदावन ने आपके परिस्थिति के लिए एक कलाम दिया है just hold it tight. उसको कस के पकड़ लें. No matter what anybody says, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है. just hang on to that word, उस वचन को बस थामे रहे. because God is bound to bring that word to pass. क्योंकि खुदावन बंधे हुए बाध्य हैं उस वचन को पूरा करने के लिए. If God had told Abraham and Moses, अगर खुदा ने मूसा से कहा था now lead these people out, lead these people out, इन लोगों को बाहर लेके जा, and here is the Red Sea, और यहां पर सामने लाल समंदर है, big problem, एक बड़ी समस्या, and from behind और पीछे से the army of Pharaoh फिरौन की सेना, to press them and kill them. ताकि उन पे दबाव डाले उनको मार दे. At that time Moses said, now what, Lord? उस समय मूसा ने कहा प्रभु अब क्या करें. He said, why cry to me? तब प्रभु ने उससे कहा तू मेरी दुहाई क्यों देता है. In other words,
Have confidence in my initial words. दूसरे शब्दों में मेरे शुरुआती जो शब्द मैंने बोले हैं उन पे भरोसा रख। I have taken you out not to make you die मैं तुझे बाहर निकाल के लाया हूं इसलिए नहीं ताकि तू मर जाए, or to take you back to Egypt. या तुझे इसलिए निकाला नहीं कि तुझे वापस मिस्र देश ले जाऊं। Become head heavy. सर को चकमकीनाई कर ले, Don't hear anybody. किसी की सुन मत, And just speak the word. केवल वचन को बोल दे। What happened? क्या हुआ? The pillar of fire came behind, आग का सतून पीछे आ गया and the sea opened in front. और सामने समुंदर खुल गया। My precious brother and sister, मेरे बहुमूल्य बेशकीमती भाई और बहन, I want to say this to you tonight. आज रात्रि में आपके सामने कहना चाहता हूं, When you have this helmet of salvation surrounding you, that you are a redeemed child of God. जब आपके पास ये टोप है जो कि आपको घेरे हुए और आपको बता रहा है कि आप खुदा के छुड़ाए हुए बेटे बेटी हो, Then nothing can harm you. तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Don't accept any thought. किसी भी विचार को ग्रहण ना करें, Accept the word. वचन को केवल ग्रहण करें। What the word has said for you is final. जो कुछ वचन ने आपके लिए बोला है वो निर्णायक है। Now this is the nature of your father Abraham. लेकिन ये है स्वभाव आपके पिता इब्राहिम का। For 25 years he held a word. 25 साल तक है वो एक वचन को थामे रहा। And mind you, he didn't have any written word. और ध्यान रखिएगा उसके पास कोई लिखित वचन नहीं था। He held on to a spoken word. God bless you। वो एक मुंह से बोले गए वचन को थामे रहा। And he held a spoken word for 25 years. और 25 साल तक है वो इस मुंह से बोले गए वचन को थामे रहा। He didn't have a written Bible, उसके पास लिखित बाइबल नहीं थी, but he had a thus saith the Lord. लेकिन उसके पास यहोवा यूं फरमाता वाला वचन था And he held on to that. और वो उसको थामे रहा। Lot of unbelief came, बहुत ज्यादा विश्वास आया, but he called all that nonsense. लेकिन उसने उन सब चीजों को बुतलान कहा। That's why it says in Romans 4, इसलिए रोमियो 4 में कहता है, calling those things which were contrary to the word and promise as nothing. वो सब बातें जो कि वचन के विपरीत है वो बिल्कुल बेकार हैं। If God has said अगर खुदावंद ने कह दिया there's going to be a rapture, तो एक रैप्चर होगा, there's going to be a body change, एक दे बदलाव होगा, and a bride is going from here. और एक दुल्हन यहाँ से जा रही She है, is going from वो here. यहाँ से जा रही है। Nothing can stop her. कोई चीज उसके आड़े नहीं आ सकती, रोक नहीं सकती। Now it's for the bride अब ये दुल्हन की बात है to hang on to that word. कि वो उस वचन को थामे रहे। This is called the helmet, इसे कहते हैं हेलमेट, surrounded by a tight helmet. और घिरे हुए हैं कसे हुए हेलमेट के साथ। You don't believe in all the statements of the devil. आप शैतान के किसी वाक्य पे भरोसा नहीं और उस पे को मानते नहीं है, Let me सुनते add नहीं। another statement for you. मैं आपके लिए एक और वाक्य जोड़ना चाहता हूं। Don't believe your thoughts. मैं एक और वाक्य जोड़ना चाहता हूं यहां पर, अपने निजी विचारों को एंटरटेन मत करें। आप ये पाएंगे, you are thinking a lot many times. आप पाएंगे कई बार आप सोच रहे हैं, Your thought process goes for hours. आपकी विचारधारा जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। घंटों तक चली जाती है। फिर you shake yourself, you come back. फिर आप अपने आप को लाते हैं, वापस लौट के आते हैं। Anything which is against the word, say, I don't believe it. हर एक वो चीज जो वचन के मुखालिफ है उससे कहें कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, I don't believe it. मैं उस पर विश्वास नहीं करता। I believe what God has said for me. मैं केवल उस बात पे ईमान रखता हूं जो खुदा ने मेरे लिए कही है। Amen. आमीन। By his stripes I'm healed, I'm healed. उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका तो मैं चंगा हो चुका। If God has revealed some word to me from the message, अगर खुदावंद ने संदेश से मेरे सामने कुछ वचनों को प्रकट किया है, if I found myself in some paragraph or somewhere, अगर मैंने अपने आप को किसी अनुच्छेद में कहीं पर पाया है, then that's me. तो ये मैं हूं। I am that. I am that. ये हूं मैं। And if ye abide in me, and my words abide in you, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, then ask what you will, तो मांगो जो तुम चाहो and it shall be done for you. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। A little while the world sees me no more, थोड़ा देर और रह गई, संसार मुझे नहीं देखेगा, but you shall see me. लेकिन तुम मुझे For देखोगे, I'll be with you even in you क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वरना तुम्हारे अंदर रहूंगा to the end of the age. इस जगत के समापन तक। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? आमीन।
When you find somebody coming for help and giving you a wonderful advice, but somehow it doesn't matches with the word, say thank you. जब कभी आपको कोई मदद की जरूरत हो, कोई आकर के आपको कोई सलाह दे रहा है और आप पाए कि वो संदेश और वचन के साथ मेल नहीं खा रहा, तो आप उससे कहें थैंक यू. Thank you. I'll catch what the word says. मैं तो केवल वो ही थामूंगा जो वचन कहता है. This is where you are strong on standing with the word. ये वो जगह है जहां पे आप वचन पे बिल्कुल अडिग खड़े हैं. Helmet of salvation we saw last time. उद्धार का हेलमेट हमने पिछली बार देखा. Please sit down. God really bless you. कृपया बैठ जाइए. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें. Now let's go a little further. अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. I think now this should be number 6. अब ये छठा होना चाहिए. And the sword of the Spirit, और आत्मा की तलवार, which is the word of God. जो कि खुदा का कलाम है. Notice this verse 17. इस 17वीं आयत को ध्यान से देखें. And 17 speaks of 10:7. और 17 बातचीत करता है 10:7 की. If you know the message, अगर आप संदेश को जानते हैं, the 7th prime number 7वां प्राइम नंबर plays in Ephesians chapter 6. जो कि इफिसियों 6 अध्याय में जिसको स्थान मिलता है. The sword of the Spirit, आत्मा की तलवार, which is the word of God. जो कि खुदा का वचन है. Now there's a little mystery which I want to share with you here. अब ये एक भेद है जिसको कि मैं एक छोटा भेद है जिसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं आपके सामने. You take the sword of the Spirit, तुम आत्मा की तलवार ले लो, which is the word of God. जो कि खुदा का वचन है. Who is he telling this to? अब वो ये किसको कह रहा है? Fivefold ministry? 5 मुखी सेवकाई को, Or is it to every believer? या हर एक विश्वासी से कह रहा है ये? Is it just for one man? क्या ये केवल मात्र एक आदमी के लिए है? Or if you read the scripture carefully, it is for everyone. या अगर आप ध्यान से वचन को पढ़ें, ये हर एक के लिए है. Paul is writing an epistle to a church. पौलुस एक पत्री को लिख रहा है कलीसिया के नाम. He's not writing it to one man. एक आदमी के नाम चिट्ठी नहीं लिख रहा. You take the sword of the Spirit, तुम आत्मा की तलवार ले लो, which is the word of God, जो कि खुदा का वचन है. for every situation. हर एक परिस्थिति के लिए. All the other parts of the armor were defensive. हाँ जी. बाकी तमाम जो हथियार हैं, जो शस्त्र हैं, इस शस्त्र में पाए जाने वाले, आप पाएंगे कि वो डिफेंसिव है, वो सुरक्षा देने के लिए हैं. But only this one is offensive. लेकिन केवल ये ही है जो कि हमलावर है चीज. This one can kill the enemy. ये वो ऐसी चीज है जो कि दुश्मन को मार सकती है. Rest of it protects you from the enemy. बाकी चीजें आपको दुश्मन से सुरक्षित करती हैं. But this one kills the enemy. लेकिन ये जो है, ये दुश्मन को मार देती है. You take the sword of the Spirit, तुम आत्मा की तलवार ले लो, which is the word of God. जो कि खुदा का कलाम है. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे. We began with this. We wrestle not against flesh and blood, हम इस प्रकार से चालू हुए थे कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, but against principalities, powers, against the rulers of darkness of this world. परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं. Against spiritual wickedness in high places. और आत्मिक सेनाओं से जो कि ऊंचे स्थानों पे हैं. Let my pastor fight. मेरा पास्टर लड़ ले. You see, it's for few people to fight such battles. ऐसे लड़ाइयां तो केवल कुछ लोगों के लिए हैं ताकि वो लड़ सकें. My precious brother, it's for everyone. मेरे प्यारे भाई, ये हर एक के लिए है. Everybody has to go through such a fight. हर एक को ऐसी लड़ाई में होकर गुजरना पड़ता है. Brother or sister. चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहनें हो. That devil comes in many forms in many places. वो शैतान जो है वो कई रूपों में होकर कई स्थानों में आता है. And it is you who has to fight. और ये आप हैं जिनको लड़ना होता है. अब मान लीजिए भाई कुमार पिंकू को लड़ना है. माफ करना, आपका नाम लिया भैया, लेकिन मैं कुछ पॉइंट समझाने के लिए कह रहा हूं. आपका नाम क्या है? मोसेस. ये भाई थियोफिलस. आपको किसने विजिट किया था? भाई जॉन डेविड ने. खैर आज यहाँ नहीं, वो आजमगढ़ गए. मैं नवीन भाई का एग्जाम्पल ले लूं आपके साथ.
लेने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। आप शाहबाद डेयरी से ही आते हैं, कहीं भलसवा, जो कि वहीं काफी दूर है, वहीं मुकरमा चौक के पास। हाँ, तो आप भलसवा डेयरी में रहते हैं, वहां पे उदाहरण के तौर पे वहीं आसपास शैतान पहुंच गया भलसवा डेयरी, ठीक है, आपके पास पहुंच गया और आया किस रूप में? भाई अपना रूप हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कोई आपकी जॉब की प्रॉब्लम, खानदानी समस्या, कोई भी समस्या आपकी आ गई भाई कुमार पिंकू। अब आपको तलवार इस्तेमाल करनी है। भाई देखो इफिसियों 6 जो लिखा गया, पास्टर आशीष लाल के लिए लिखा गया। अब यहां भाई आप लोग गलत हो जाएंगे, ये लिखा है हर विश्वासी के लिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। तो कुमार पिंकू भाई, ये वचन की तलवार किसे उठानी होगी? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आपका उदाहरण लेके आप ही को नहीं सुना रहा मैं, आप यहां बैठे कई हैं, आपके माध्यम से सबको सुना रहा हूं। तो ये वचन की तलवार, जरा पढ़ना फिर से 6 आयत, क्या लिखा है? क्योंकि मैं अभी कहीं आऊंगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो खुदा का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो कि खुदा का वचन का प्रचार तो पास्टर करता है। वचन ले लो, तो ये वचन लेने का काम पास्टर करता है और संडे ट्यूसडे थर्सडे को हमें दे देता है? यहां तो बड़ी अजीब बात है कि अब ये वचन की तलवार तुम ले लो। मतलब कहने का यहां ये नहीं कि प्रचार करने लगो, यहां सबका प्रचार का हिसाब किताब नहीं है, बहन तो वैसे प्रचार नहीं कर सकती आपको मालूम है, लेकिन ये वचन की तलवार लेके शैतान को परास्त करो। प्रचार की बात नहीं हो रही, और बाय द वे शैतान प्रचार सुनने वाला भी नहीं है। प्रचार आपके लिए है, शैतान के लिए नहीं। वो तो मरने मारने के लिए आया है सीधा। शैतान को बैठ के प्रचार करने मत बैठ जाओ, शैतान को तो सीधा भोग दो वचन की तलवार से कि वो भागे वहां से। तो क्या हुआ कि भाई कुमार पिंकू ने कहा तलवार तो नहीं है मेरे पास, लेकिन भाई नवीन पीटर के पास या सुनील कैलेब के पास थी या जॉन डेविड के पास थी। फोन लगाता हूं, ब्रदर समस्या है, अपनी तलवार लेके आओ मेरे लिए। तब तक तो शैतान उड़ा देगा। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तलवार नहीं है तो सबसे बढ़िया बात है, मैं ऐसे कोई तो ढूंढता हूं। मुझे खासतौर से ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जिनके पास कोई तलवार है ही नहीं। इनको तो मैं यूं पकड़ूं, नोचूं, खत्म कर दूं, है नहीं। और मेरा आना रात के 2 बजे भी हो सकता है, दिन के 2 बजे भी हो सकता है। बहनें भी सुने, मारी आपके, मैं कोई परेशानी या मैं कोई विचार या मैं कोई चीज, कोई समस्याओं के कोई नाम थोड़ी ना है, बहुत ढेर सारी होती हैं अलग अलग तरीके से। समझ आपके, यानी कि मैं समझाना भाई कुमार पिंकू को ही नहीं, सबको चाह रहा हूं, हर सिचुएशन के लिए आप रेडी होना चाहिए वचन से। Amen. तो यहां सबसे पहली बात तो यह आएगी कि भैया क्या फिर वचन मुझे भी बैठ के पढ़ना पड़ेगा, हैं कुमार पिंकू भाई? दूसरी बात, क्या वचन जो प्रचारा जाता है पुलपिट से खोपड़ी में दर्द करके समझना पड़ेगा? छोड़ो, अगर ना समझ में आई आगे समझ लेंगे, बात बन पाएगी? यार यही तो प्रॉब्लम है, बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनने वाली, क्योंकि शैतान सुन रहा है वो प्रचार, उसने कहा इसमें मैं अटैक मारूंगा इन पे, और आप बैठे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं केवल एक ही चीज है, लॉर्ड मदद करें और भाई हमारे लिए दुआ करें। शैतान ने कहा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम्हारे यही जवाब। ऊपर से भाई पौलुस अगर देख से कहें
तुमसे कहा था तलवार के लिए, कहां है तुम्हारी तलवार? इस सिचुएशन के लिए जो तुम्हारे पास आई, बाइबल में ये जवाब था। फलानी तारीख के फलाने मैसेज में ये बात बोली गई थी। और अगर मैं उसकी वीडियो वापस लगाऊं, उस टाइम तुम यूं कर रहे थे। तुम्हारी वीडियो भी दिखाएगा। उस टाइम तुम, मैं भाई कुमार पिंकू से नहीं कह रहा, मैं सबसे कह रहा हूं, हमारी आपके, या उस टाइम तुम ऊपर थे कुछ अपने आप को ईज आउट करने के लिए, जैसा भी लगा लें, समझ में आई आपके, तुम वो पॉइंट मिस कर गए। जिस जिस पॉइंट को मिस करते गए, उन पॉइंट्स को मैं चुनता गया। जिन जिन पॉइंट्स को तुम अपने कान पे लगा के गिराते गए, मैं उन पॉइंट्स पे अपने पॉइंट्स बनाता गया कि इनका फलाने फलाने दिन मैं इन्हीं बातों का टेस्ट लूंगा। और मुझे मालूम है इन्होंने नहीं सुनी है, समझ मारिए आपके। और जब ये फेस करेंगे तब ये बौखलाएंगे, अब क्या करें? तब इसी के भाई 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 तो चल रहा है आज। इफिसियों 6 तुम्हें बनाना चाहता है एक सिपाही, जिसमें आप ब्रदर ब्रदर सिस्टर ना करते फिरें। अच्छा एक चीज बताइए, सफेद घोड़ों पे सब बैठे हैं, कुमार पिंकू, भाई मोजेस, भाई नवीन पीटर, भाई करणपाल, सब ये अब समझो दिमाग लोग सफेद घोड़े पे हैं। और इधर से एक तीर आया या तलवार मारने का टाइम आया एक दुश्मन को, तो घोड़े पे सवार हैं और कह रहे हैं निशान भाई मारो, निशान भाई मारो, नवीन पीटर भाई तुम मारो, और तुम चल रहा है भैया जैसा भी है, हम तो सफेद घोड़े पे ही हैं। तो ये बात चल पाएगी? सफेद घोड़े पे जो जो बैठा होगा सब मार रहे होंगे। या तो आज ये मानो मैं सफेद घोड़े के लिए बना ही नहीं, या अगर मैं बना हूं तो फिर ये तलवार केवल प्रचारक के लिए, पुलपिट पे प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, लेकिन ये वचन की तलवार मुझे इस्तेमाल करनी है 24 घंटा, 24 घंटा। खैर वो मैसेज में, लेकिन एक उदाहरण था जो कि भाई लाल सुनाया करते थे। क्या सुनाया करते थे? हमने पढ़ा, प्रचार भी किया और आज फिर बताते हैं। डॉन गॉसेट सब जानते हैं, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसके बाद वही टांग जो थी सूज गई, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया, खून जम गया नस में, तो टांग सूज गई। सूज के काली पड़ने लगी, गैंग्रीन। आपको मालूम है इसमें टांग कटती है या जहर फैलेगा तो मौत भी हो सकती है। और डॉक्टर्स ने ज्यादा होप दी नहीं थी डॉन गॉसेट की पत्नी को। पड़ी हुई थी हॉस्पिटल में, सूजी नीली टांग लेके, नीली टांग बड़ी खतरनाक होती है। अब क्या हुआ, वो आए, कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा सा अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए और थोड़ा सा मन हटाने के लिए मैं इनसे कुछ वचन की बात करूं, जैसा हम लोग भी करते हैं कभी कभी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। और डॉन गॉसेट ने कौन सा अध्याय निकाला? जबूर 27। डॉन गॉसेट को तो मालूम नहीं था कि ये आयत कहां इस्तेमाल होगी। और 27 की पहली आयत पढ़ी। मैं आपको वचन की तलवार समझा रहा हूं। यहोवा मेरे जीवन का बल है, मुझे किसका डर। हमारी इंग्लिश की आयत मुझे पूरी याद है। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, हुम शैल आई फियर। तो बोला तो उनकी पत्नी ने भी धीमे धीमे बोला, सो रही थी। लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ, प्रभु मेरे जीवन का बल है, मुझे किसका डर। 2-4 मिनट बोला, फिर तेज बोलने लगी, यहोवा मेरे जीवन का बल, तो मुझे किसका डर। सच बात है, किसका डर? मौत का डर, इस बीमारी का डर। क्या मुझे डरना चाहिए? तो मैं डर क्यों रही हूं? 2-4 मिनट के बाद तो वो खड़ी हो गई। अब 1 मिनट, अभी ठीक नहीं हुई। अब उन्होंने और जोर जोर से बोलना शुरू किया, यहोवा तो मेरे जीवन का बल है, मुझे किसका डर। जिसने बल मुझे दिया है तो मैं इससे कैसे डर सकती हूं। अब डॉन गॉसेट कहना चाहते हैं बैठ जाओ, कहीं क्लॉट डिसलॉज होकर ऊपर ना चला जाए।
मर ना जाओ, वो तो खड़ी हो गई और खड़े होके वो चलने लगी। 5 मिनट के बाद डॉन गॉसेट ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे उसकी नीली काली टांगें गुलाबी पड़ना शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के अंदर सारी की सारी टांग खत्म, नॉर्मल। Amen, amen. मेडिकल साइंस कहते हैं हिलना नहीं, हमारे एंजियोग्राफी करेंगे, फिर हम तुम्हारे वो डालेंगे फिल्टर और ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा क्लॉट के लिए तुम्हारे क्लॉट ब्लस्टर डालेंगे, इंजेक्शन इतने का है लगेगा, धीरे धीरे क्लॉट खुलेगा, देखते हैं टांग बचती है नहीं बचती है। आ रही है समझ में आपके? 10 मिनट के अंदर। All is well. मैं पूछता हूं ज़बूर 27:1 का इस्तेमाल किसने किया? भाई डॉन गॉसेट ने, वो तो शायद एक पास्टर भी थे, उनकी पत्नी ने। अब ये तलवार किसने इस्तेमाल करी? एक बहन ने। और 5-10 मिनट में हर बीमारी के पीछे नबी ने बोला एक शैतान है, वो शैतान परास्त हुआ, टांग बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो ठीक हो गई, जहां मरने वाली थी अगले दिन छुट्टी हो गई। तलवार किसने इस्तेमाल करी? तलवार किसने इस्तेमाल करी? यह है समझने वाला पार्ट। क्योंकि जहां आप अपने हालात में हैं, कहीं रह रहे हैं, किसी मकान में हैं, कमरे में हैं, वहां कोई भाई नहीं होगा, वहां कोई बहन नहीं होगी, तो ये वचन की तलवार फिर किसने उठानी पड़ेगी? हाँ, ये पॉइंट समझने वाला है। सफेद घोड़ों पे केवल 5-fold मिनिस्ट्री नहीं बैठेगी प्रकाशित 19 में, सफेद घोड़ों पे एक चर्च बैठेगा, खुदावन के कुछ चुने हुए इलेक्ट बैठेंगे। और अगर आज शाम आप अपने आप को उन इलेक्ट में मानते हैं, Yes, sir. मानती हैं, तो ये लिख लीजिए, तलवार तुम्हें लेनी है। Amen, amen. तलवार मुझे लेनी है। आप बोलिए, तलवार मुझे लेनी है। इसलिए बोलवा रहा हूं कि मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये लाइन याद रहेगी। मारिए, बैठिए। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। Sometimes the word takes time. कभी कभी वचन समय लेता है। डॉन गॉसेट के केस में इमीडिएट चंगाई चाहिए थी, मिल गई क्योंकि जरूरत भी थी, इमरजेंसी थी। कभी कभी वचन समय भी लेता है, लेकिन वचन पूरा होता है। Amen, amen. It's a seed. ये एक बीज है It brings forth of its kind. और अपनी किस्म को लेके आता है। Now I'm going a little further with you. अब मैं आपके साथ थोड़ा आगे चल रहा हूं। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। And take the sword of the Spirit, which is the word of God. और आत्मा की तलवार जो कि खुदा का वचन है ले लो। I'm reading a quote to you from the 4th seal. चौथी मोहर से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ रहा हूं। Again a very familiar one to you. और फिर से आपके लिए एक बहुत ही जाना पहचाना हिस्सा है ये। You know, when you read the 2nd seal, Brother Branham said, आप जानते हैं जब आपने दूसरी मोहर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे नबी ने कहा, he was on a red horse वो लाल घोड़े पर था शैतान, and he has given a great sword. और उसको एक बड़ी तलवार दी गई है। But then there is a promise. लेकिन फिर एक वायदा है, He that kills by sword gets killed by sword. जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। Did the Lord said that to Peter? क्या प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये कहा था? Then Brother Branham connected it with Revelations 19. तब भाई ब्रैनम इसको जोड़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 के साथ। If this horse rider has killed with his sword, अगर इस घुड़सवार ने अपनी तलवार से कत्लेआम किया है, then he will get killed by sword. तो प्रकाशित वाक्य 11 के मूसा एलिया के लिए बात नहीं कर रहे नबी। यहाँ एक बहुत बड़ा कट है, कटाक्ष है, इसलिए मैं रख रहा हूं इस पॉइंट Amen, को। amen. Wait till them 7 thunders utter their voices. इंतजार करें जब तक कि वो 7 गर्जन के शब्द अपने शब्दों को ना दे दें, अपनी आवाज को ना दे Of दें। that group, उस झुंड के there will be a group एक झुंड होगा who will hear these 7 voices. जो कि इन 7 आवाजों को सुनेंगी। अब क्या होता है ब्रदर, जैसे आप थंडर्स की बात करते हैं, 7 आवाजों की बात करते हैं, यहीं से मेरा गला खिचखिच करने लगता है। फंस जाता है। 7 thunders, 7 गर्जन। ब्रदर बात करो,
खुदावन प्यार करता है, हमें ये करते हैं, प्रभु ने हमारे लिए जो मैंने कई बार करी भी हैं, हमें चंगाई देते हैं, प्रभु हमारे साथ बड़े बड़े काम करते हैं, हमारा दिल आराम से रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं 7 वॉइसेस, अब ये 7 वॉइसेस पे आके थोड़ा मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो सकता है। मतलब मुझे लगने लगता है कहां पहुंच गए 7 वॉइसेस पे। 7 वॉइसेस क्या है यार? एक दिन भाई आशीष ने कहा नबी के मैसेज से डिवाइनली रिवील्ड मिस्ट्री ट्रुथ्स कंटेन इन द 7 सील्स, दैवीय रूप से छिपे हुए सत्य भेद जो कि मोहरों में छिपे हैं। हमने भी 7 सील्स वैसे तो पढ़ी है तो बहुत बढ़िया किया है। ध्यान से सुनिएगा, there's a group एक झुंड है which wants to hear these 7 voices. जो कि इन 7 आवाजों को सुनना चाहती है। अपने दिल से एक सवाल पूछिए आज शाम, क्या मैं इन 7 आवाजों को सुनने का इच्छुक हूं? Amen. Yes, my brother. क्या मुझे 7 आवाजें चाहिए? Amen. क्या इन 7 आवाजों के बिना मेरा काम चलेगा? गुजारा चलेगा नहीं भाई। अभी थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूं कि बिना इन 7 आवाजों के सुने सफेद घोड़ा भी नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। Try to understand now. समझने की कोशिश करें आप। Wait till them 7 thunders utter their voices. इंतजार करें जब तक कि 7 गजन अपने शब्दों को ना दें। Of that group उस झुंड के लिए who really can take the word of God. जो वास्तविकता से खुदा के कलाम को ले सकते हैं। Which word of God? कौन सा खुदा का कलाम? Which uttered by 7 voices. जो कि 7 गजनों के शब्द के द्वारा बोले गए। They have heard it, they have understood it, उन्होंने इसको सुना है, इसको समझ गए हैं। they made it personal. उन्होंने इसको व्यक्तिगत बना लिया है। They can take that word of God वो उस खुदा के कलाम को ले सकते हैं and hand it there. और उसको वहां दे सकते हैं। It will slice and cut. वो काटेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। Take the sword of the Spirit. आत्मा की तलवार को ले लो। And that Spirit was 7 spirits today. और वो एक आत्मा आज 7 आत्माओं में प्रकट हुआ आज। And the days of the 7th Spirit, और 7वीं आत्मा के दिनों में the one with the 7th seal. वो जिसके पास 7वीं मोहर थी। And under the 7th seal, और 7वीं मोहर के नीचे there are 7 voices. 7 आवाजें हैं। Amen. Amen. अब यहां एक पॉइंट मैं रखने की कोशिश करूंगा। When the prophet received this commission, sit down please. जब नबी ने इस सेवकाई को, इस ठहराई हुई सेवकाई को प्राप्त किया, We are talking about take the sword of the Spirit, which is the word of God. हम बातचीत कर रहे हैं कि आत्मा की तलवार जो कि खुदा का कलाम है उसको ले लो। You know that event which happened in Sabino Canyon, आप जानते हैं उस घटना को जो कि घटित हुआ सबीनो कैनियन में, when he was praying with his hands, जब वो अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना कर रहे and थे here came a sword. और यहाँ पर हाथ में वो तलवार आ गई। And there was a voice which said, और वहां पे फिर एक आवाज आई जिसने कहा, this is the king's sword. ये एक राजा की तलवार है। And Brother Branham says only one the king, और नबी ने बताया केवल एक मात्र वो राजा है that is God, जो कि खुदा है and he has only one sword. और उसके पास Only one sword, उसके पास केवल एक ही तलवार है, the word of God. खुदा का वचन। He said it fit my hand perfectly. नबी ने कहा वो सित्ता पूर्ण मेरे हाथ में बैठ गई। Now that was his commission, अब ये उनकी सेवकाई थी to preach the 7 seals, कि 7 मोहरों का वो प्रकाशन प्रचार करें। the 7 voices to go through him. 7 आवाजें उनके माध्यम से होके निकलेंगी। Where? कहां पे? Now to the bride. अब दुल्हन के लिए। Then the bride also has some kind of sword. तो फिर दुल्हन के पास भी किसी किस्म की तलवार है। Some sword that fits Naveen's hand, some sword that fits Sunil's hand, Kumar Pinku's hand, Brother Harrison's hand. Their hand and that sword fits perfectly.
कोई तलवार है जो कि भाई नवीन पीटर के हाथ में फिट बैठती है, भाई सुनील कालेब के हाथ में फिट बैठती है, भाई कुमार पिंकू के हाथ में फिट बैठती है, भाई हैरिसन के हाथ में फिट बैठती है। यानी कि सोड भी बनी है नाप के अनुसार। आमेन। Nobody can share anybody's sword. कोई भी किसी अपनी तलवार किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। Everybody has his unique sword. हर एक के पास उसकी अनोखी तलवार है। Something from the inside said, अंदर से किसी ने कहा, this is the third pull. ये तीसरा खिंचाव है। आमीन। Do you remember the message? क्या आपको याद है उस संदेश? What did Paul say? पौलुस ने क्या कहा? And take the sword of the Spirit, और आत्मा की तलवार को ले लो, which is the word of God. जो कि खुदा का कलाम है। Pick up a word. एक वचन को उठाइए। Let it be a sword in your hand. ऐसा हो कि वो वचन जो आपने उठाया आपके हाथ में एक तलवार बन जाए। It fits your hand. वो आपके हाथ में फिट सटीक बैठ जाए। It's fit for your situation. वो आपकी परिस्थिति के लिए ठीक बैठ जाए। It's fit for your Goliath. आपके गोलियत के लिए वो फिट है। It's fit for your mountain. आपके पहाड़ के लिए ये सटीक है। Try to understand. समझने की कोशिश करें। बाय। And take the sword of the Spirit. और आत्मा की तलवार को ले लो। But here we find there's a group waiting for those 7 voices. लेकिन हम पाते हैं यहाँ पर एक झुंड है जो कि 7 आवाजों का इंतजार कर रहा है। 7 voices gives them that sword. 7 आवाजें उनको वो तलवार मुहैया करती है। In this age, इस युग में, which is the word of God. जो कि खुदा का कलाम है। बैठिए, मैं क्योंकि मैं नबी के मैसेज से ही पढ़ूंगा। Wait till them 7 thunders utter their voices. इंतजार करी जब तक कि वो 7 गर्जने अपने शब्दों को ना दें। Of that group उस झुंड के लिए who really can take the word of God जो कि वास्तविकता से खुदा के कलाम को ले सकते हैं and hand it there. और उसको वहां उपयोग कर सकते हैं। It'll slice and cut. वो काटेगा और टुकड़े टुकड़े करेगा। And they can close the heavens. और वे आकाश को रोक सकते हैं। यह तो मैंने उन 2 गवाहों के लिए पढ़ी थी। ओ माय, यह तो मैंने मूसा एलिया जो आएंगे 1,40,000 के पास 3.5 साल में वो ये काम करेंगे, हैं? वो ये काम करेंगे, इसलिए मैंने आपके सामने डायरेक्ट कोट पढ़ा। You see, people don't read the message completely. सच है। There's a problem with the people. जैसे एलिया ने आकाश रोक लिया, बारिश नहीं हुई, ये काम तो मूसा एलिया करेंगे। अब मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। And they can close the heavens. और वो आसमान को बंद कर सकते हैं। Who's this they? ये वे कौन है? 2 people? Or is it a group? क्या एक झुंड है ये? Amen. They can close the heavens. वे आकाश को बंद कर सकते हैं। They can shut this वो इसको बंद कर सकते हैं or do that. या वो कर सकते हैं Whatever they want to. जो कुछ चाहे वो करना। Amen and amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Glory. Now you realize अब आप समझेंगे this is for a people. ये एक खास झुंड के लिए है। We know a son of man. हम जानते हैं मनुष्य के पुत्र के रूप में He showed it through the prophet. उसने इसको नबी के मार्फत करके दिखाया And he will show it more now. और अब अधिकाई से इसको दिखाएंगे। He will do it. वो इसको करेंगे। For a generation he chose one man. उस पीढ़ी के लिए उसने एक आदमी को चुना। But when it comes to this fight, लेकिन जब बातचीत करते हैं इस लड़ाई की, when you come to this Armageddon, जब आप आर्मगेदोन की बात करें, it is not just one man having the sword, it's all of them having a sword. ये केवल एक आदमी नहीं जिसके हाथ में तलवार है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक सेना है जिसके हाथ में तलवार है। They will speak. वे बोलेंगे।
it'll slice and cut. वो काटेगा और टुकड़े टुकड़े करेगा। आज स्लाइस और कट हो नहीं रहा। समस्या ये है, आज खुद कट हो रहे हैं, उसे कट नहीं कर पा रहे। कभी कभी यही होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जगाना चाहता हूं। यस माय ब्रदर, Whatever they want to. जो कुछ चाहे वो करना। He's speaking of two people, Moses and Elijah. क्या वो दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, मूसा और एलिया के बारे में? No, he's speaking about a group here. लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहे हैं एक झुंड के बारे में। अब आप क्या अपने आप को इस झुंड में मानते हैं? आमेन। Are you a part of this group? क्या आप इस झुंड का हिस्सा हैं? Brother, sister. भाइयों बहनों, They can do whatever they want to. वे जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। What a group will that be? अब ऐसा झुंड कैसा होगा? It'll be a super church. ये एक सर्वोच्च कलीसिया होगी। अब सोच के देखिए, आप शैतान को अपने कपड़ों में नहीं हरा पाई, आप शैतान को अपने कपड़ों में, अपने बालों में नहीं हरा पाए। आप शैतान को ऑफिस में नहीं हरा पाई। कुछ हालात आते हैं ऐसे, बाद में आके खुदा से माफी मांगते हैं और माफ करते हैं। सवाल पूछिए, शैतान को हराना कब शुरू करेंगे? हैं? सिर्फ ये आर बार इसलिए दिया गया कि बचते रहो शैतान से, भागते रहो, बचते रहो, यूं यूं यूं। या एक तलवार भी दी गई कि मारो। Then in the breach he says, तब फासले वाले संदेश में नबी ने कहा, if you have seen dueling, अगर आपने जब दो लोग तलवार से लड़ते हैं उसको देखा हो, though it's a sword of the word, यद्यपि ये वचन की तलवार है, but it takes a strong hand of faith, लेकिन इसके लिए एक बलवान हाथ चाहिए विश्वास का, which holds it tight जो उसको कस के and पकड़ती है puts it to the heart of the enemy. और दुश्मन के ठीक हृदय तक उसको पहुंचा देती है। Are you with me, my precious brother, sister? मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, क्या आप मेरे साथ हैं? Are you becoming more conscious of your warfare? क्या आप और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं अपने इस मलयुद्ध के लिए? It's everywhere. ये हर जगह है। The minute you step out, it's there. जिस मिनट आप इस कमरे से बाहर पदार्पण करें वो युद्ध मिल जाएगा। Even here, लेकिन यहाँ पर भी it's here in the form of thoughts. यहाँ पर भी विचारों के रूप में ये मलयुद्ध है। That's right. बात सही है। How do I fight? मैं कैसे लड़ूं? I have only one weapon to hit the devil, शैतान को मारने के लिए तो मेरे पास केवल एक ही हथियार है, which is the sword of the Spirit, जो कि आत्मा की तलवार है, the word of God. खुदा का कलाम। Let me read something. आइए मैं आपके सामने Same कुछ quote, brother. वही हवाला मेरे भाई। Glory, महिमा, he'll be slayed by the word. वो वचन के द्वारा काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब सुनिए नबी से कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ एक रेवलेशन छिपा है। He'll be slayed by the word that proceeds from his mouth. वो वचन के द्वारा मार दिया जाएगा जो कि उसके मुंह से निकल रहा है, खुदा के मुंह से निकल रहा है। Is sharper than a two-edged sword. और वो चोखा है दो-धारी तलवार से भी ज्यादा। आइए एक मिनट प्रकाशित 19 निकालें। Amen. And I'm reading from verse 11. और मैं 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। His eyes were as a flame of fire, and his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम खुदा का वचन है। You know who's riding it? Our Lord Jesus Christ.
but he's identified as the Word of God. आप जानते हैं ये कौन है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे हो रही है? खुदा के कलाम के रूप में। And the armies, he's not alone, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. स्वर्ग की सेना, उसके पीछे कुछ एक सेना है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। And out of his mouth, और उसके मुंह से एक अकेला शख्स, कौन? जो सफेद घुड़सवार प्रभु यीशु मसीह हैं, के मुंह से। मेरे को जिंदगी गुजर जाती इस आयत को समझते समझते, और मैं नहीं समझ पाता। मुझे आपका नहीं मालूम। And out of his mouth goeth a sharp sword. और उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है। तो जाहिर सी बात है, पीछे सब घोड़े पे बैठे हैं, आगे वाला जो है मसीह, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही है। यही तो आप और मैं समझेंगे। आयत को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? जो आगे श्वेत घुड़सवार प्रभु यीशु मसीह, उनके मुंह से चोखी दो धारी तलवार निकलती है, और पीछे एक सेना है जो सफेद घोड़ों पे सवार है। उनके पास तलवार थोड़ी ना है, हमारा लिखा तो है नहीं ऐसे। अगर मैं खाली पढ़ने पे और लिखने पे और समझने पे बात करूं, क्या सच्चाई है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है ताकि जाति जाति को वो मार सके। And he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. वो लोहे का राजदंड लिए हुए ओहो। उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान खुदा के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। And he hath on his vesture and on his thigh and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। That's our Lord Jesus Christ. ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। Out of his mouth उसके मुख goeth से a sharp two-edged sword. उसके मुख से एक चोखी दो धारी तलवार निकलती है। A sharp sword, एक चोखी तलवार by which he'll smite the nations. जिसके द्वारा वो जाति जाति को मारेगा। आइए अब इसी लाइन को नबी के इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। नबी ने जो बोला, आमीन। ग्लोरी, महिमा, बात कर रहे हैं शैतान की। He'll be slayed by the word वो वचन के द्वारा मारा जाएगा that proceeds from his mouth. जो कि उसके मुख से निकल रहा है। एक शख्स आमीन। is sharper than a two-edged sword. और वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखी है। अगली लाइन, they could call for 100 billion tons of flies if they wanted to. वो अगर चाहे तो खरबों टन मक्खियों को अगर बुलाना चाहे तो वो आ सकती हैं। अब ये लाइन समझ में नहीं आ रही, कुछ चक्कर है। ये लाइन समझ में नहीं आ रही। सोट तो निकल रही है आप मसीह के मुंह से। गॉड ब्लेस यू। आप बोलेंगे और होगा। अगली लाइन कहती है, और वे यानी एक झुंड आमीन। खरबों टन मक्खियां बुला सकते हैं। अब वे एक झुंड की बात क्यों कर रहे हैं? आपको बोलना चाहिए वो मसीह बोलेगा, क्योंकि तलवार तो उसके मुंह से निकल रही है, इनके मुंह से थोड़ी ना निकल रही है। Whatever this, they could call for 100 billion tons of flies if they wanted to. Amen. अगर वो चाहे तो वो खरबों टन मक्खियों को बुला सकते हैं अगर वो चाहे तो। आमीन। Whatever they say is going to happen. जो कुछ वो कहेंगे वैसा ही हो जाएगा, Because क्योंकि it's the word of God ये खुदा का कलाम है coming from the mouth of God. जो कि खुदा के मुंह से निकल रहा है। Yeah, amen. हाँ आमीन। God always, it's His word. खुदा हमेशा ये उसका कलाम है, But He always uses man to work it. लेकिन वो हमेशा एक
वो हमेशा मनुष्य को इस्तेमाल करते हैं इसको कार्यान्वित करने के लिए। When you read that line, जब आप इस पंक्ति को पढ़ते हैं, out of his mouth went a sharp two-edged sword. उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती है। तो ये भी समझ लें ये एक दर्शन था. And there are many things symbolic. और बहुत सारी चीजें चिन्हात्मक हैं। तो सिंबल का मतलब समझें कि आपके मुंह से दोधारी तलवार निकलने का मतलब क्या हुआ, कि वहां एक इकलौता नहीं है जिसके मुंह से तलवार निकल रही है, वो तलवार इनके मुंह से बोलेगी. Amen, amen, amen. Glory to God. Are you understanding something? क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? यानी कि एक सीधी सी बात यह हो गई, कुछ है इस युग में. Amen. बादल दिखाएंगे जो इनका मुंह बन गए. Amen, amen. लेकिन बोला वही जाता है जो सोचा जाता है. यानी कि इनके अंदर मसीह का मन आ चुका है. Amen, amen. God bless you. और चौकी दो धारी तलवार ले लो. कैसे ले लो? बोल नहीं सकते जब तक पहले विचार ना आ जाए. Amen. और विचार एक भेद था. Amen. जो खुदा के मस्तिष्क में था. Amen. एक त्रिमुखी भेद Amen. जिसे आज के युग में खोला गया. Amen. I believe it. बोला गया ताकि वो भेद, वो विचार कुछ लोगों में ट्रांसफर कर दिए जाएं. Amen. Amen. अब ये Amen. इनका विचार बन जाए. Glory. और जैसे इनका विचार बने, इनका बोल बन जाए. Amen. और जब Amen. वो बोले तो ये हो जाए. Amen. ये है चोखी दो धारी तलवार, ले लो. Amen. ध्यान से समझिएगा. Whatever they say is going to happen. जो कुछ वो कहेंगे वो घटित होगा. Please sit down. बैठ जाइए. Because it's the word of God coming from the mouth of God. क्योंकि ये खुदा का कलाम है जो कि खुदा के मुंह से निकलता है. Yeah, amen. हाँ, आमीन. God always, it's his word. खुदा हमेशा ये उसका वचन है. But he always uses man to work it. लेकिन वो हमेशा मनुष्य का इस्तेमाल करता है इसको कार्यान्वित करने के लिए. Now he goes further. You are familiar, but you see, you have to be familiar with something more. अब आप इस बात के लिए आपको ये मालूम है और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए और जागरूक हो और इसमें और आप बातों को समझें. God could call for them flies down at Egypt. खुदावंद उन मक्खियों को बुला सकता था मिस्र देश में. But he said, Moses, that's your job. लेकिन खुदावंद तो बोल सकते थे, मक्खी आ सकती थी मिस्र देश में, लेकिन खुदावंद ने मूसा से कहा ये तेरा काम है. I'll just tell you what to do. मैं केवल तुझे बताऊंगा क्या करना है. And you go do it. और तू जाके इसको कर. Hallelujah for this Moses. हालेलुया इस मूसा के लिए. He fully done that. उसने पूर्णतया इसको किया. He could have chosen the sun to call them. वो सूरज को चुन सकता था उनको बुलाने के लिए. He could cause the moon to call it. वो चांद को विवश कर सकता था कि वो उनको बुला ले. कि वो निकासी लेके आए. Yes. Or the wind to call it. या फिर हवाओं को कह सकता था कि वो उनको बाहर निकासी में लेके आ जाएं. But he said Moses. लेकिन उसने कहा मूसा. That he chose his man. उसने अपने मनुष्य को चुना. All right. बिल्कुल सही बात है. Now I'm going to read further. मैं आगे पढ़ूंगा. How this power comes. कैसे ये सामर्थ आती है. Now suddenly everything which we have been preaching in the last few meetings will get connected here. अब अचानक से वो तमाम बातें जो हम पिछले मीटिंग में प्रचार कर रहे थे यहाँ पे जुड़ जाएंगी. Now we find out here अब हम यहाँ पाते हैं that this Satan, ये शैतान after being kicked out of heaven, स्वर्ग से नीचे लात मार के गिराने के बाद incarnates himself in the beast. अपने आप को मुजस्सम करता है पशु में. मैं सोच रहा था बड़ी जोर से सब आमीन बोलेंगे. बोली नहीं सबने, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पा रहे. जी अभी अभी कुछ दिन पहले यह प्रचार हुआ था. यस यस ब्रदर. हुआ था नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था. आपने सुना था? Amen. इसको ध्यान से सुनिए. Now we find out here that this Satan, अब हम पाते हैं यहां पर ये शैतान after being kicked out of heaven, स्वर्ग से गिराने के बाद incarnates himself in the beast. अपने आप को एक पशु में मुजस्सम करता है. And now he is a beast. और अब वो एक पशु है.
Antichrist, मसीह विरोधी, false prophet, झूठा नबी, and now a beast. और अब एक Now beast. पशु, अब पशु है, And given the name of death, और उसको एक नाम मिलता है जो कि मृत्यु, and hell follows him. और उसके पीछे नरक आता है. Fully Satan on his throne. पूर्णतः शैतान अपने सिंहासन पे. Oh my, on the earth. ओ माय, अब पृथ्वी के ऊपर He's Satan, वो शैतान है, representative on the earth. पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधित्व. That he now is head of the kingdoms of the world. क्या वो जगत के राज्यों का वो मुखिया है? The very same kingdoms that he offered to the Lord Jesus. वही राज्य जिसको कि उसने प्रभु यीशु मसीह को के सामने प्रस्ताव के रूप में रखा था. In Matthew 4, मत्ती 4 में Satan now becomes a full king. शैतान अब पूरा संपूर्ण राजा बन जाता है. ये कब होगा? 3.5 साल में, जब वो उस पाप के पुरुष में घुसेगा और वो मुजस्सम शैतान पृथ्वी पर राज करेगा. लेकिन कब होगा? जब पहले शैतान गिराया जाएगा. अब इस पॉइंट को नोटिस करिए. Now this happens later on. अब ये बाद में होता है. He is false prophet now. आज तो वो झूठा नबी है. The Pope, you know that. आप जानते हैं पोप. He will become beast वो पशु बनेगा after a while थोड़े समय के बाद, when he breaks his covenant there with the Jews. जब वो उस वाचा को जो यहूदा के साथ बांधी है उसको बीच में तोड़ देगा. You know how we all right. Notice now. अब ध्यान से देखिए. अब He'll be given a heart of a beast उसको पशु शरीर का हृदय दिया जाएगा at that time. उस समय. And Satan will incarnate himself. और शैतान उसमें मुजस्सम हो जाएगा. कब होगा ये? Because क्योंकि when the church goes up, हालेलुया, जब चर्च ऊपर जाएगी Satan is cast out. शैतान नीचे गिरा दिया जाएगा. It's done. Then all of his accusing is done. तब उसका तमाम दोषारोपण समाप्त हो जाएगा. When will that happen? ये कब होगा? At the rapture. रैप्चर के समय. At the time of the rapture, accusations will finish. रैप्चर के समय तमाम तहमतें और दोषारोपण खत्म हो जाएगा. Now this is one of the mysteries in their seals. अब ये भेदों में से एक भेद है जो कि मोहरों में है. That the accuser cannot just go on. कि जो दोष लगाने वाला है वो यूं ही चला नहीं रह सकता. At the time of the rapture, रैप्चर के समय पे when the church is going up, जब कलीसिया ऊपर जाएगी his accusations are finished. उसके तमाम दोष लगाना समाप्त हो जाएगा. Then he's kicked down. तब वो लात मार के नीचे गिरा दिया जाता है. The accuser of our brethren भाइयों पे दोष लगाने वाला is kicked out. वो लात मार के निकाल दिया जाएगा. I said, now enough of your accusations. और कहेगा, और उसे कहा जाएगा बहुत हो गया तेरे दोष लगाना. Get out from here. यहां से दफा हो जा. That's when he comes with wrath to other people. अब ये वो समय हो जब वो बड़े गुस्से के साथ दूसरे लोगों के पास आएगा. सुनिए now क्या होता है. See now it's long. अब सुनिए. Look, as long as the intercessor is still on the throne, ध्यान से देखिए, जब तक के वो मध्यस्थ जो है वो सिंहासन पे है. who's that? Christ. कौन है वो? मसीह. Satan can stand there and accuse शैतान वहां खड़े होकर के दोष लगा सकता है. because he is the attorney of the other side. क्योंकि वो तो विपरीत की ओर वाला वकील है. He is the opponent of Christ. मसीह का वो विरोधी है. And Christ he is standing there. और मसीह जो है वो वहां खड़े हैं. The opponent is standing there. और वहां पर जो दोष, वहां पे जो विरोधी है वो दूसरी जगह खड़ा है. दोष लगाने वाला. यस. Saying, कहते हुए, but wait. लेकिन इंतजार करो. ये देश नहीं ब्रदर प्लीज आप समझो प्लीज ट्रांसलेशन करने से पहले. ये जो दोष लगाने वाला है ये बोल क्या रहा है? आप खड़े हैं कुछ लोगों के लिए कि इनको क्लियर करें और बताएं इनका कुछ रोल नहीं है, कुछ नहीं है इनका, ये बिल्कुल साफ हैं. इधर एक दोष लगाने वाला क्या मैं प्रूफ करूंगा, तो बता रहे हैं दोष लगाने वाला क्या बोलता है. सुनिए, 1 मिनट कहता है, 1 मिनट, बट वेट, 1 मिनट रुको. एडम फेल. आदम गिरा. भूल गए आदम गिरा था. एडम डन दिस. आदम ने ये किया. I conquered him. मैंने उस पर जय प्राप्त की. I got his wife to believe a lie. मैंने उसको, उसकी पत्नी को एक झूठ पे विश्वास करा दिया. And you said she would be damned by it. और आपने कहा कि वो उसके द्वारा दोषी ठहरेगी. I got it. मैंने इस काम को कर लिया. बड़ा खुशी मना रहा था कि मैंने इसकी बीवी को एक झूठ पे विश्वास करवा दिया
और आपने कहा और वो विश्वास करेंगे, थिस्सलुनीकियों में कहा है ना, और उसके द्वारा दोषी ठहर के खत्म हो जाएंगे। देखा, इसलिए वो खत्म है। बट हियर इज द मीडिएटर स्टैंडिंग देयर, लेकिन यहां पर वो बिचवा यहां खड़ा है। आमेन, आमीन। द किंसमैन रिडीमर, निकट कुटुंबी, छुड़ाने वाला। आमेन, आमीन। stand there with the blood और वहां खड़ा है लहू के साथ, that can take the vilest sinner's heart जो कि सबसे गिरे हुए गुनहगार के हृदय को ले सकता है and change it. और उसको बदल सकता है। The mediator is on the throne. बिचवा इस सिंहासन पर है। Yes, sir. जी हां श्रीमान। Satan said, शैतान ने कहा but they are guilty. ये तो दोषी है। He can say, वो कह सकता है they are not. वे नहीं है। I'm asking you, bride, मैं आपसे पूछ रहा हूं दुल्हन, which sentence will you believe? आप कौन से वाले वाक्य पे विश्वास करेंगे? I'll believe this one. मैं इस वाले पे विश्वास करूंगा। Yes. आमीन। For me. ये मेरे For लिए you, है। for you. ये मेरे लिए है। आपके लिए है, आपके लिए। Satan says they are guilty. शैतान कहेगा कि वो तो दोषी है, He can say they are not. लेकिन वो जो पिछवाई है वो कहेगा ये नहीं है। That Clorox was invented वो जो विरंजक है वो उसकी खोज हुई or manufactured या बनाया गया to take stain, ताकि तमाम धब्बों को, दागों को हटा दे। take the coloring out of ink or any other stain. स्याही में से या किसी भी दाग के उस रंग को वो हटा दे। They got it. उनके पास है ये, He'll break it up वो इसको तोड़ देगा till you never will find it again. जब तक कि आपको उसका वजूद तक नहीं मिलेगा। It goes back to gases वो वापस वाष्प बन जाएगा and all the way back to cosmic light और वापस पीछे लौट के जाए तो कॉस्मिक लाइट बन and जाए past molecules and everything else और तमाम अणुओं को और तमाम चीजों को पास करके निकल जाएगा till it turns back to the original where it come from. जब तक कि वो मूल नहीं बन जाएगा जहां से वो आया था। Where? कहां से? जो accuse कर रहा था वहीं से तो आया था। आमीन। जो दोष लगा रहा था वहीं से आया था। It's a creation. ये एक सृष्टि है And a creation had to come from a creator. और सृष्टि को जरूर है किसी सृष्टिकर्ता के पास से आए। But all the chemicals that was manufactured and put together, लेकिन तमाम रसायन जो कि बनाए गए और एक साथ रखे गए they are broke up. वो टूट जाते हैं And that's just all there is to it. और इतना ही रह जाता है इसका, There's no more of it. उसका कुछ भी वजूद नहीं रहता। किसका? गुनाह का. आमीन। Even the very water substance it is blends with the Clorox, which is ashes. और यहां तक कि आप पाएंगे वास्तविक पानी जो पदार्थ है वो मिल यहाँ जाता तक कि है। वो पानी वाला हिस्सा भी जो उस दाग का रह जाता था, रंग तो मिल गया, उसका पानी वाला हिस्सा भी क्लोरॉक्स में ही विलीन हो जाता है, which is ashes. जो कि राख है। Amen. आमीन। Glory to God. खुदा के नाम की महिमा हो। It's all clean. ये सब शुद्ध है, साफ है। आमीन। Are you happy for that tonight? क्या आज रात्रि इस बात के लिए आप खुश हैं? That's what the blood of Jesus Christ does to the true child of God. और ये वो चीज है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू एक सच्चे बेटे पर करता है जो खुदा का है। When he confesses that sin जब वो उस गुनाह का अंगीकार करता है and stands there और वहां खड़ा होता है, justified in his उसकी दया में वो धर्मी ठहर जाता है। mercy, goodness, even it's so great till God said, I can't even remember it anymore. ओ मेरे खुदावंद, ये इतनी महान चीज है जब तक कि खुदावंद भी कहते हैं कि मुझे इसके बारे में रत्ती भर भी याद नहीं है। And he's absolutely my son. और ये पक्की तौर से मेरा बेटा है। Try to understand it, what is being said here. जो कुछ यहाँ कहा गया है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। He's trying to bring the power of that atonement, वो उस प्रायश्चित की सामर्थ को लाने की the कोशिश करें, power of the blood. लहू की सामर्थ को। Don't underestimate the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का खून को कभी नीचे मत आंकना। It is very powerful. ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। God, even God says, यहाँ तक कि खुदावंद भी कहते हैं, I can't remember it. मुझे ये गुनाह याद नहीं आता। खुदा कह रहा है मुझे याद नहीं. Amen, my God. Hallelujah. My God. And he's absolutely my son. और ये पक्की तौर से मेरा बेटा है।
You see, before the war comes on earth, आप देखिए इससे पहले कि लड़ाई पृथ्वी पर आए, it is fought in heaven. ये स्वर्ग में पहले लड़ी जाती है. And you are justified in that dimension first. और God bless you. और आप उस वाले अय्याम में पहले धर्मी ठहरते हैं. Then that justification comes to this dimension. और तब फिर वो धर्मी ठहरना इस वाले अय्याम में आता है. Because you are an elect. क्योंकि आप एक चुने हुए हैं. You have been interceded for. आपके लिए मध्यस्थता हो चुकी है. Remember, brother, sister, you have been interceded for. याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, आपकी मध्यस्थता हो चुकी है. And now God says, और अब खुदावन कहते हैं, I can't even remember it anymore. मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में पता भी नहीं, याद भी And नहीं he's है. absolutely my son. और ये पक्की तौर से मेरा बेटा है. Now comes next paragraph. अब आता है अगला अनुच्छेद. Verily I say unto you, देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, if you say to this mountain, आए! अगर तुम इस पहाड़ से कहो, be moved, यहां से सरक जा, and don't doubt in your heart, और अपने हृदय में संदेह ना करो, but believe in what you have said, लेकिन विश्वास करो उस बात पे जो तुमने कही है, it shall come to pass. तो ये बात गुजर जाएगी. Who is this group then, brother? तो मेरे भाई मेरी बहन, ये झुंड फिर कौन है Which has the sword of the Spirit? जिसके पास आत्मा की तलवार है? They are under the blood. वो लहू के नीचे हैं. They are justified. वो धर्मी ठहर चुके. But believe in what you have said, लेकिन विश्वास करे उस बात पे जो आपने कही है, it shall come to pass. वो बात घट जाएगी. You can have that. What you have said would be. और आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपने कहा था हो जाने के लिए. You are a redeemed son. आप एक छुड़ाए हुए बेटे हैं. Amen. I know that's true. आमीन. मैं जानता हूं ये सत्य है. I've seen squirrels to appear yonder मैंने गिलहरियों को सामने प्रकट होते देखी हैं. on 6 different times 6 फरक दफाओं पे. that I knew not the one that would be sitting here. जबकि मुझे मालूम था कि वो फलाना वो वाली जो चीज वो वाली जो गिलहरी वो इस जगह बैठेगी. Just as he can create squirrels, ठीक जैसे वो गिलहरियों को सृष्टि the कर सकता same है, as he can create flies वो जैसे कि मक्खियों को सृज सकता है, or frogs or anything else. या मेंढकों को या किसी और चीज को. He is God, वो खुदा है, the creator. सृष्टिकर्ता. Right. बिल्कुल सही. And when no mortal being, जबकि कोई भी वहां पर एक जीवित प्राणी नहीं but है. when that sin of that mortal is confessed लेकिन जब वो गुनाह जो कि नाशमान का है, जब वो अंगीकार किया जाता है and dropped into that Clorox और उस विरंजक में डाला जाता है, of the bleach of Jesus Christ, amen, प्रभु यीशु मसीह Lord. के विरंजक में it bleaches all sin. ये तमाम गुनाह को मिटा देता है. He is purely unadulterated, वो शुद्धतापूर्ण बिना मिलावट के हो जाता है, without sin, बगैर गुनाह के, without fault. बिना त्रुटि के. He that's born of God does not commit sin, जो खुदा से पैदा है वो गुनाह नहीं करता, for he cannot sin. क्योंकि वो गुनाह कर ही नहीं सकता. The bleach stands between him and God. जो विरंजक है वो खुदा और उसके बीच में खड़ा How होता could it है. ever get there? आप कैसे वहां पहुंच सकते हैं? When it breaks it up जब वो उसको तोड़ देता है and sends it right back to the one who perverted it. और ठीक उसके पास भेज देता है जिसने उसको बिगाड़ के रूप में लेके आया. Amen. आमीन. Whew, I feel religious. ओ मैं बहुत ही धार्मिक महसूस कर रहा हूं. I tell you, I get stimulations now अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उत्तेजनाओं को महसूस कर रहा हूं as this begins to reveal. जबकि ये प्रकट होना शुरू होता है. My precious brother, मेरे प्यारे भाई, sit down please for a कृपया minute. बैठ जाइए 1 मिनट के लिए. Ephesians says, इफिसियों में लिखा है, and take the sword of the Spirit, और आत्मा की तलवार ले लो, which is the word of God. जो कि खुदा का वचन है. This is where I want to bring a thought to you. ये वो स्थान है जहां पे मैं आपके सामने एक विचार लाना चाहता हूं. Devil will try to make you always believe you're wrong. शैतान आपको हमेशा ये मनाने की कोशिश करेगा और विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम गलत हो, And show your wrongs which you have done. और आपकी गलतियों को जो आपने की है उनको आपको बार बार दिखाएगा. But here is a principle from the message and the Bible. लेकिन अब यहां पर एक सिद्धांत है संदेश से और बाइबल से. Yes, it's wrong. हाँ वो गलत है, But if it's confessed, लेकिन अगर वो जो गलती आपने करी है, अगर वो उसका अंगीकार आपने खुदा के सामने किया है from your heart. अपने हृदय से, अब ये कन्फेशन होना चाहिए प्रॉपर. आधा पौना कन्फेशन नहीं चलेगा. पूरा दिल से खुदावन के सामने जो गलत किया सामने वैसे का वैसा रख दो. प्रभु मैं यहां गलत हूं, ये मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ करें. अब है अगली चीज. Immediately तुरंत the blood of Lord Jesus Christ starts working. प्रभु यीशु मसीह का खून काम करने लगता है.
And that sin is wiped away. और वो गुनाह जो है सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया जाता है. In that confession is your victory. उस अंगीकार में आपकी जीत है. Try to understand. इसको समझने की कोशिश करें. The minute you confess that, जिस मिनट आप इसका अंगीकार करते हैं, you're coming more closer to God. आप खुदा के और नजदीक आ रहे हैं. That sin is wiped out. वो गुनाह मिटा दिया गया. Even God says, यहां तक कि खुदावन भी कहते हैं, I can't remember it. मुझे ये याद नहीं आता. Which is the highest court in India? हिंदुस्तान में सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट. Highest court in United States? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊंचा दर्जे का न्यायालय कौन सा है? Federal Court. फेडरल कोर्ट. Nothing higher than that. उससे ऊंचा कुछ और नहीं है. The Chief Justice. वो उच्च न्यायाधीश, सबसे ऊंचा जो न्यायाधीश है, Chief Justice. चीफ जस्टिस. But now listen carefully. लेकिन अब ध्यान से सुनिए, The highest court is not all these. सबसे ऊंचा वाला न्यायालय ये तमाम चीजें नहीं है. It's the court of heaven. ये स्वर्ग का कोर्ट है. And that court has given a sentence. Oh my God. और उस वाले कोर्ट ने एक सेंटेंस दे दिया है. Come unto me मेरे पास आओ and sit down. और बैठ जाओ. Have a conference with me. मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस करो. And though your sins be like scarlet, और यदि तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, it'll be white as snow. हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे. Why can't you come? तुम आओ क्यों नहीं सकते? So simple. इतने सिंपल बात है. मुझे शर्म आती है, ये गुनाह से मुझे शर्म आती है. मतलब शर्माओ नहीं, आओ. जो गलत किया है मेरे सामने बोलो. तुम जिंदगी भर उन्हें नहीं मिटा पाओगे बेटा, मैं पल भर में उन्हें मिटा दूंगा. आमेन आमेन. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूं. मैं तुम्हें खाली गुनाह माफ करके छोड़ दूंगा नहीं, मुझे तुम्हें एक और गॉड बनाना है. आमेन आमेन. कि मेरे मुंह से, तुम्हारे मुंह से एक वचन की तलवार आमेन. निकले. आमेन. लड़े. मुझे बेटा तुम्हें वहां लाना है, बेटी तुम्हें वहां लेके आना है. Start with me. मेरे साथ चालू करो. And here the prophet says, और यहां पर नबी कहते हैं, when that sin is confessed, sit down please, जब वो गुनाह खुदा के सामने उसका अंगीकार किया जाता है, it is finished. तो वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है. Even God says, I can't remember it यहां anymore. तक कि खुदावंद भी कहते हैं, मुझे बिल्कुल रत्ती भर याद नहीं आता. It is erased from God's memory खुदावंद की यादाश्त से वो मिटा दिया गया forever, हमेशा के लिए, for eternity. अनंता के लिए. No future case can make a reference to that case. हाँ जी, आगे भविष्य में आने वाला कोई भी केस उस वाले केस की ओर संकेत नहीं दे सकता. कि आपको याद है उस फलाने केस में क्या जजमेंट था, उस फलाने केस में क्या जजमेंट था, वो केस ही नहीं है. It's finished. ये खत्म हो चुका है. Even out of God's memory. यहां तक कि खुदावंद की यादाश्त से भी निकल चुका है. लेकिन इसने ये किया, जनाब तुमको मैं कुछ कहना चाहता हूं. ये इसने नहीं किया, तुमने किया. ये तो मेरा बेटा है. Amen. I love it, Lord. I love it, Lord. ये तो मेरी बेटी है. Amen. हैं? आपको याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है. ये कैसी बात है? वो तो ऐसी ही बात है. मुझे याद नहीं है किस आदमी ने क्या किया. मुझे इतना मालूम है कि ये जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे अंदर था और आज भी ये मेरा हिस्सा है. Amen. Amen. Now, when you come to that level, जब आप उस स्तर पे आते हैं, that's why I said to you, इसलिए मैंने आपसे कहा, think on your redemption. अपने छुटकारे के बारे में सोचें. Your redemption is not a small thing, brother, sister. मेरे भाई मेरी बहन, छुटकारा
आपका छुटकारा कोई छोटी चीज नहीं है। How you have been washed. कैसे आप धोए गए। ये भी आपका रहम है कि आप याद दिलवाते हैं आमेन, कुछ ऐसे काम जो आपने किए लेकिन भूल गए। आमेन। ओ लॉर्ड, याद, फॉरगिव मी। ये भी आपका रहम है कि याद दिला दें कि आप कहां कहां गलत थे, ये बात सही है। कहां कहां आप गलत थे, आपको याद दिला दिया गया। ये रहम था ताकि यहां माफी मांग लो और बच जाओ। आमेन। बैठिए। When that happens, जब ये होता है, you are blood washed. आप लहू से धुल जाते हैं। Under that blood, at that atonement, उस प्रायश्चित के नीचे you stand back as a son of God. आप वापस खड़े होते हैं खुदा के बेटे के रूप में। Now you have an authority अब आपके पास एक अधिकार है to speak the word, कि आप खुदा के कलाम को बोलें, and it shall be. और वैसा ही हो जाएगा। Now comes Mark 11:23. अब आता है मरकुस 11:23। If you say to this mountain, अगर तुम इस पहाड़ से कहो, is that much clear? क्या इतनी बात स्पष्ट है? When devil came to our Lord Jesus, जब शैतान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आए, did he have the sword of the Spirit with him, क्या उनके पास वो आत्मा की तलवार थी, which is the word? जो कि वचन है? Did he defeat the devil by what is written? क्या उसने शैतान को हराया इस बात से कि ये कि क्या क्या लिखा है? Make these stones bread. इन पत्थरों से रोटी बना दे। It is written. लिखा है। Man shall not live by. अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको उदाहरण देके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सब प्यारे प्यारे भाई बहन यहां बैठे हैं, समझेंगे। इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए, आपने उसका अपोज किया ताकि शैतान को उसकी बात पूरी ना करके उसको डिफीट करें। तो जवाब में आपने कहा लिखा है, नहीं सुनिए, लिखा है खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। शैतान हारेगा? यानी कि शैतान के बोलने पे या जो आजमाइश लाया है कि अनुकूल आयत बोलनी है, ऐसी ही कोई आयत उठा के नहीं बोल देनी। इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए, उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। अब यह आयत मैच कर रही है उस आजमाइश से, वरन हर उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलेगा जीवित रहेगा। यानी कि इन 40 दिन जो मैं जीवित रहा हूं, बिना खाए हुए निराहार रहे, एक सामर्थ थी जिसने मुझे अब तक जीवित रखा है। मैंने कुछ खाया है इन 40 दिनों में, और वो है खुदा का कलाम। आमेन। शैतान का मुंह बंद। नबी ने इसको ड्रामेटाइज किया, मानो जैसे वो पंख वाला दूतों से जबरदस्त 10,000 वोल्ट का बिजली का झटका लगा। ये पहला शख्स है आदम के बाद जो इस किस्म का जवाब दे रहा है। मैं तो हर एक को हरा लिया, चाहे कितने से कितना बड़ा नबी है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। लेकिन ये क्या है? सुना अपनी पहली आजमाइश। डिड ही हैव द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट? क्या उसके पास आत्मा की तलवार थी? आमेन। सोर्ड ऑफ द स्पिरिट की बात है, लेकिन ऐसा वचन जो उस समय के लिए, उस सवाल के लिए अनुकूल हो। ऊपर ले गए, अब अगली आजमाइश, और ऊपर से कहा गिर। तूने कहा ना लिखा है। मैं तुझे ज़बूर 91 याद दिलाना चाहता हूं, यह भी लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को दे भेजेगा कि हाथों हाथ तुझे उठा ले, कि तुझे पत्थर से ठेस ना लगे। समझ आ रही है आपके? तो आपने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। अब यहां वो चीज नहीं चल पाएगी। तू अपने खुदा की परीक्षा ना कर। समझ मारी आपके? क्या मैं गिर के प्रूव करूं? क्या आप दूध भेजेंगे?
है नहीं? फिर पूरा जगत का वैभव और राज दिखाए, मेरे सामने झुक, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू अपने खुदा ही की उपासना कर। हर सिचुएशन की वैसी आयत, परफेक्ट आयत। जब कभी कोई समस्या आए प्यारे भाई बहन, संदेश उठाओ और बाइबल उठाओ। ये वचन की तलवार उठाना कैसे है मैं समझा रहा हूं। और उस सिचुएशन के मुताबिक आप वचन ढूंढो, आप नबी का मैसेज ढूंढो, आपको मिलेगा। हो ही नहीं सकता नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मिलता है। Amen, amen. And when you get that word, और जब आपको वचन मिलता है, now hold it आप उसको थामे रहें and say it is written. और कहें ये लिखा है। Whenever devil says something, जब कभी शैतान कुछ कहे, you say it is written. आप उससे कहें ये लिखा है। And every time when you quote that written, और जब हमेशा जब आप उस लिखित को कोट करते हैं, that devil is defeated. वो शैतान हरा दिया जाता है। Not just that, केवल यही नहीं, it comes to a higher level ये बात ऊंचे स्तर पे पहुंचती है that you are even given power to speak some things. कि यहां तक कि आपको सामर्थ्य दी जाती है कि आप कुछ चीजों को बोल दें वजूद में। Speak it, इसको बोल दें, and it happens. वैसे ही हो जाता है। Are you understanding it, church? क्या कलीसिया इस बात को आप समझ रहे हैं? Take the sword of the Spirit, which is the word of God. आत्मा की तलवार ले लो जो कि खुदा का कलाम है। Have you understood it? क्या आप इसको समझ गए? Amen. आमीन। Am I speaking to blood-bought people? क्या मैं लहू के द्वारा खरीदे हुए लोगों से बात कर रहा हूं? Those who have been interceded for? वे जो जिनका की मध्यस्थता हो चुकी है। आमीन। My sheep hear my voice, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं and a stranger they will not follow. और किसी परदेशी के पीछे वो नहीं जाती। अभी मुझे एक बात सुनने को मिली, चलिए मैं बोलता हूं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्यार करें के ऊपर एक बात आई थी अभी, याद है आपको? चलिए भाई, मीटिंग खत्म हुई, सब हुआ। अब बाहर जाके शायद किसी जवान को पकड़ा, आपकी उम्र कितनी है, क्या है, ठीक है, आप शादी कब करेंगे, ठीक है, बात वो भी हो गई। याद रखना, जब शादी हो तो अपनी ब्राइड को किस करना, और चाहे तुम्हारा पास्टर माने या ना माने, तुम कहना मैं अपनी ब्राइड को किस करना चाहता हूं। अब ये क्या चीज हो गई है? ये बात समझ में आ रही है आपके? जो खुदावन की भेड़ें हैं वो वचन की सच्चाई पे खड़ी हैं और सच्चाई पे चलेंगी। जब उन्हें कुछ और सुनने को मिले, और याद रखना तुम्हारा पास्टर भी अगर मना करे, कि उन्हें शायद लगने लगा था कि पास्टर हमारी बातों को नहीं मान रहा, लेकिन तुम करना ये क्या है मतलब इसका? कि लोगों को बताया जा रहा है ये करो, तुम्हारा पास्टर कहे ना कहे तुम करो। यानी कि मतलब कि पास्टर तुम्हारा वचन पे खड़ा ही नहीं है, वचन तो हम दिखा रहे हैं आपको। आपकी समझ में आ रही है? प्यारे भाई और प्यारी बहन, मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं, इतने सालों से ये कलीसिया चली और चलती आ रही है। और हमने एक चीज रखी थी यहां पे कि दूल्हा जो है दुल्हन का वेल उठाए। अमेरिका में, यूरोप में वो किस भी करते हैं, सच्चाई है, बहुत बढ़िया बात है। इस पे क्या कोई शिक्षा है? क्या नबी ने इसको कोई शिक्षा करके कहीं प्रचारा? हाँ ब्रदर, जिस दिन शिक्षा समझ में आ गई हम भी करने लगेंगे। भाई ब्रैनम वहां पे नहीं बोल रहे, वो तो
जी हां, तो अगर ये शिक्षा नहीं है तो उसे खुदा कलाम शिक्षा बना के क्यों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करें। कई चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो निकल के आती हैं, जिनका इंजेक्शन कुछ लोग खा जाते हैं। हाँ जी, ये बात सच है। हमारे चर्च में ये नहीं होता। हमारे चर्च में नहीं होता से पहले पास्टर से तो बिल लो, समझो। देखो एक यहां आए हैं, इन्होंने बातें बताई, थैंक गॉड, खुदा का धन्यवाद हो ऐसा हुआ नहीं। खुदा का बहुत धन्यवाद हो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खुदावन के फजल से लोग एक स्तर पे आ चुके हैं, कई लोग, और कई चीजें बढ़िया समझ रहे हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। समझने की बात ब्रदर सिस्टर ये है, मैं और आप अब इस बात को ध्यान से समझें। आपसे यह कहा गया, और वचन की तलवार उठाओ, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि खुदा का कलाम है। समझ मारिए आपके, खुदा का कलाम क्या कहता था? एक कोट हमने भी पढ़ के सुनाया था। हाँ जी, समझ मारिए आपके, एक और कोट हमने पढ़ के सुनाया था। सब आमीन बोलो पे नहीं, आपसे नहीं, उस दिन बोला जा रहा था आमीन बोलो सब, तो हमने एक दूसरी बात पे भी आमीन बुलवाया कि वचन नबी ने कहा कि मैं प्रेफर करता हूं कि लोग अपनी बाइबलें लेके आए। आमेन। बोला नहीं बोला? क्या नबी बाइबल लाते थे? आमेन। जी हां, मैं जानता हूं जमाना हाईटेक हो चुका है, लेकिन बाइबल वो चीज है जो खुदा ने आपको दी, जिसको लेके आप मंच पे आए प्रचार के काम के लिए। यस, यह है वचन की तलवार। आमेन। जब ऐसी बातें रखें तो उसके बाद फिर दिमाग कुछ और भी होता है। बहरहाल, मैं किसी एक भाई के ही नाम से नहीं बोलूंगा, मैं एक आत्मा को लेके कहूंगा, ये एक आत्मा है ब्रदर। आइए इस आत्मा को परखें। नाना प्रकार से आपके पास आ सकती है, आपके पास अनुकूल वचन होना चाहिए दिल में, उसके लिए कुछ बोलने के लिए। और जब आप उस वचन को बोलते हैं, तुरंत शैतान हारता है और चला जाता है और आ नहीं सकता। और जब आने की कोशिश करे, फिर से उस वचन को बोलो, आपकी समझ में आ रही, वो नहीं आ पाएगा। अब यहां पे फिर थोड़ा सा आपको देखना होगा अपने सिचुएशन के लिए, लेकिन अब मैं यहां कहूंगा, यहां रोल है पवित्र आत्मा का। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। आमेन। एंड होली गोस्ट विल लीड यू टू दोज वर्ड्स, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा उन वचनों पे, एंड शो यू दैट वर्ड विच यू हैव टू टेक, और आपको दिखाएगा वो वचन जो कि आपको लेना है। एंड व्हेन यू स्पीक इट, और जब आप इसको बोलेंगे, दैट डेविल इज डिफीटेड। वो शैतान हरा दिया जाएगा। कैन वी से आमेन? क्या हम आमीन कह सकते हैं? पढ़ने वाले बच्चों के लिए आयत है, बिल्कुल सच है। नई जॉब मिले के लिए आयत है, इतने दिन से काम करने, इतने पैसे में खुदा कुछ और बढ़ सकते हैं, पे आयत है। समझ मारी है? शैतान शोहरत, औरत, दौलत, आप सब जानते हैं, नबी ने बोला, प्रचार किया, लेके आता है, हर एक के लिए एक आयत है। समझ मारी है? जब आप उस परिस्थिति में फंस रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आपका दिल खिंच रहा है, तुरंत आयत स्मरण करें और उस आयत को बोलना शुरू करें। वो खिंचन ढीली पड़ना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में वो वचन एक एंजल बनेगा, आमेन, जो आपको घेर लेगा। यस सर। और जब आप घिर जाएंगे, वो परिस्थिति आपके सामने से हटेगी। आमेन। आपकी समझ में आ रहा है प्यारे भाई बहन? आमेन। एक जवान है, उसके सामने कुछ 2-3 ऐसी लड़कियां खड़ी हैं जो कि बुरी तरीके से ड्रेस्ड हैं, और हो ही नहीं सकता कि नबी ने कहा उनको देखें और बुरे विचार ना आए। तभी एक आयत आई, हे तिमोथियस,
Flee youthful lusts. जवानी की वासनाओं से भाग. ये लिखा है बाइबल में. Flee also youthful lusts. Flee also youthful lusts. जवानी की लालसाओं से भी भाग. Romans, रोमियो. mortifying the deeds of flesh और शरीर के कामों को मारते हुए through the Spirit. आत्मा के द्वारा. आपकी समझ में आ रही है? हर एक चीज के लिए कोई आयत है. हाँ जी. हर एक चीज के. नबी ने कहा मेरे पास एक क्रूस है जिसको मैं देखता हूं. आमेन. गाड़ी में वो थॉट्स याद करने शुरू करके आप क्रॉस लाइए सामने. थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शुरू में, थोड़ी देर के बाद एटमॉस्फेयर बदल जाएगा. ये है बात ब्रदर. गॉड ब्लेस यू. अब आप अपने एटमॉस्फेयर में मेट्रो में बैठे हैं, अपने एटमॉस्फेयर में बस में हैं, अपने एटमॉस्फेयर में ऑफिस में हैं. आमेन. आमेन. जिसके पास सिद्ध विश्वास है, नबी ने कहा ही बिकम्स अ मिस्टेक. वो एक भेद बन जाता है. People can't understand him. लोग उसको समझ नहीं पाते. Why? क्यों? He starts living in a world to himself. वो अपने ही एक संसार में रहने लगता है. World of perfect faith. एक ऐसा संसार जो कि सिद्ध विश्वास का है. My brother, my sister, मेरे भाई मेरी बहन, take the sword of the Spirit, आत्मा की तलवार ले लो. recite the words, वचन को दोहराओ. speak the words, वचनों को बोलो. build an atmosphere around you, अपने चारों ओर एक वातावरण बनाओ. suck yourself out of this dimension, इस वाले अय्याम से अपने आप को बाहर खींच लो. and in that dimension where the Lord talks, और उस अय्याम में जिसमें प्रभु बात करते हैं, keep in connection with Him. उसके साथ एक जोड़ में बने रहे. Watch paradoxes happen. आप देखेंगे अजूबों को घटते हुए. What has not happened starts happening. जो अब तक के नहीं हुआ वो घटने लगेगा. Because you are a creature of not this earth. क्योंकि आप इस पृथ्वी के आप प्राणी नहीं हैं. You're a creature of heaven. आप स्वर्ग के प्राणी हैं. So did you understand the sword of the Spirit? तो क्या आत्मा की तलवार को आप समझे? The word of God. खुदा का कलाम. It doesn't mean preaching. इसका मतलब ये नहीं प्रचार करना. It's talking about warfare. यहाँ पे बातचीत हो रही है एक युद्ध की, In मल्लयुद्ध which की, every brother and sister is. जिसमें हर एक भाई और बहन इस मल्लयुद्ध में पाया जाता है. Are you understanding, brother? क्या समझ रहे मेरे भाई मेरी You बहन? can speak that word in that situation. उस वाले खास परिस्थिति में आप उस खास कलाम को बोल सकते हैं. अब इसके लिए बैठना पड़ेगा, खुदा से Amen. मांगना पड़ेगा, Amen. पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी पड़ेगी, और पवित्र आत्मा आपको उन वचनों पे लेके जाएंगे. Amen, I believe ये it. रहा तेरा वचन. Yes. ये रहा तेरा वचन इस सिचुएशन के लिए. ओ माय माय माय. और जहां वचन मिला ब्रदर, Amen. अभी डबल रोटी नहीं आई, लेकिन उसका पैसा मिल गया जिससे डबल रोटी मिलेगी. Amen. Amen. Faith is a substance, विश्वास पदार्थ है and that comes by the hearing of the word. जो कि खुदा के कलाम को सुनने से आता है. And when you hear that appropriate word, और जब आप उस उपयुक्त वचन को सुनते हैं, that's you, ये आप हैं. your situation. आपकी परिस्थिति. Take that sword उस तलवार को ले लें and hit on the enemy. और दुश्मन के भेद दें. Catch it strong उसको बड़े ही जो कस के पकड़ें. and call everything contrary to it as nothing. और हर एक चीज जो उसके विपरीत है उसको बिल्कुल नकार दें. And say it's nonsense. और कहीं ये बकवास है. This word is true. ये वचन सत्य है. And then what happens? क्या होता है? It starts happening. ये घटने लगता है. आप situations बदल देते हैं. Amen. God bless Now you. circumstances become favorable for you. अब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं. You change situations for yourself. आप हालतों को अपने लिए बदल देते हैं. You change circumstances for you. आप अपने लिए हालतों को बदल देते हैं. Now you become the conqueror. अब आप जय प्राप्त करने वाले हो जाते And you हैं. start moving from glory to glory. और महिमा से महिमा में आप बढ़ने लगते हैं. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God really bless you. खुदावंद आपको वास्तविकता में बरकत दे. Take the sword of the Spirit, आत्मा की तलवार को ले लें which is the word of God. जो कि खुदा का वचन है. God really bless you. खुदा ने आपको बहुत आयत से बरकत दे. I'll not just go on. मैं ऐसे ही यूं नहीं चलता रहूंगा. I'm not just go on. ऐसे ही चलता नहीं रहूंगा. मैं ऐसे ही चलता नहीं रहूंगा. But I'd like to say God bless you. लेकिन मैं कहना चाहूंगा खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. Meditate on that. इस पे मनन करें. God bless you. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके सुंदर कलाम के लिए. हर परिस्थिति के लिए आपका कोई वचन है, और उस वचन की तलवार को हमें लेने का फजल दें, जिससे हम उस शैतान को हरा सकें, ताकि खुदावन हम जीत पाएं हर परिस्थिति में. मैं धन्यवाद देता हूं, आप देते हैं.
आप ना होते तो हम कब के मर मिटे होते, लेकिन आप देते हैं। आपका नाम मुबारक हो। मेरी दुआ है खुदावन हमें विजयी बनाए। अगले संडे जब हम चर्च में इकट्ठा हों तो विजयी लोग हों, जो उस मेज में भागीदार हों और कहें हाँ इस हफ्ते मैंने विजय पाई और आज मलकीसदक से मैं दाखरस और वो रोटी लेता हूं। मेरी विनती और प्रार्थना है हम में से हर एक के साथ हो, अपनी ताकत तंदुरुस्ती से हमें भरें। यहोवा मेरे जीवन का बल है, मुझे किसकी दहशत। धन्यवाद हो खुदावन, आप अपने वचन में हमें लिए चलें। तमाम माए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। जब यहाँ से घर जाते हैं, समय से घर पहुँचें, हर चीज़ को ठीक ठाक पाएं। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं। कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।